be seated in the presence of हम our सभी Lord. बैठ जाएंगे खुदावंद की हुजूरी में God is good. all the time. Can we tell them God is good? Huh? Yeah, God is good. Hallelujah. Okay, let's wait for the translation. God is good. Hallelujah. Amen. If I tell you God is good, खुदावंद अच्छा है, okay, tell your neighbor all the time. हर वक्त खुदावंद अच्छा है, एक दूसरे को Amen. बोलिए God is good. God is good. Okay. You ask your neighbor, ask him, God is एक good. दूसरे को बोलिए कि खुदावंद अच्छा है. Hallelujah. Okay, let's give praise to our living God. Let's Hallelujah. give the अपने हाथों best को clap इस्तेमाल of कीजिए, praise. क्लैपिंग कीजिए. Amen. Hallelujah. So today, are we excited to study the Word of God? आज के दिन हम बहुत एक्साइटेड हैं कि आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को बताएं. No Hallelujah. response, brother. So, are they excited? आप सब एक्साइटेड हैं? Yeah, Hallelujah. okay. So, we are excited. Amen. आमीन. So, I know that you are all excited this afternoon. मैं जानता हूं कि आप सब भी एक्साइटेड हैं हमारी तरह. Amen. So, Amen. praise God. हालेलुया. Okay, my name is Dave. मेरा नाम देव है. I am the preacher for this afternoon. और आज मैं आपको बताऊंगा खुदावंद के पाक कलाम के लिए. In behalf of our Pastor Robert, और मैं खुदावंद के बंदा पास्टर रॉबर्ट की जगह पर यहाँ who बैठा is हूँ, not here today. क्योंकि वो यहाँ पर आज के दिन नहीं है. They are a mission in Taiwan. वो अपने मिशन पर ताइवान गए हुए हैं. Amen. So I will be with you this afternoon. और आज मैं आफ्टरनून के वक्त आपके साथ हूँ. Amen. हालेलुया. प्रेज द Amen. लॉर्ड. So let us clap, give the best clap of praise. तालियां at our बजाकर living खुदावंद के God. नाम को ज़ितौर जलाल दें. Okay. So I know and I believe po with all my heart और मैं जानता हूँ और मैं यकीन करता हूँ मेरे पूरे दिल से that all of us wants to grow. कि हम सब जो हैं एक साथ आगे बढ़ेंगे. Before we are still a baby, right? All of us. पहले हम बच्चे थे. पहले सब हम बच्चे थे. Bacha, before Yes. bacha. Yes. Okay. Now we've been grown up. और अभी हम बड़े हो रहे हैं और बड़े हुए हैं. But it doesn't mean और इसका ये मतलब नहीं है it's automatic. कि ऑटोमेटिक आप बड़े हुए हैं. Right? राइट. So before we've been, from the womb of our mother, जब हम अपने माँ के पेट में थे, we all experienced to be in a baby. हमने सबने तजर्बा किया है कि हम बच्चे थे. But now we have been grown up. लेकिन अब हम जवान हो चुके हैं और बड़े हो चुके हैं. But what have you done? आपने क्या किया है बड़े होकर? What have you done? You eat kabsa, you drink milk. आपने बड़े होकर खबसा खाया है और ड्रिंकिंग की है. ऐसा Kubus. हाँ, Okay, kubus. biryani. No? आपने कबूल कहा है, उन्होंने खुबस समझा है. लेकिन चलें, खुदावंद का शुक्र है. Chapati. आपने रोटी खाई, खुबस खाई. Right? यस. Maybe soft drinks, Pepsi, Coke. आपने पेप्सी पी और कोक पी है. That's why, it's not an automatic. ये सब ऑटोमेटिक Okay. नहीं था. The same thing in our spiritual life. और ये इसी तरह हमारे साथ स्पिरिचुअल लाइफ में होता है. Maybe some of you are still, thinking, आप कुछ लोग अभी तक सोचते होंगे why I'm here? हम इस जगह पर क्यों मौजूद हैं. Is that so? आप ऐसा सोचते हैं कुछ भाई? Right? यस. Maybe. Yes, they say we are here for our in King Jesus Christ eternal life. Yeah. Hallelujah. But yeah, give him praise. Praise the Lord. Jesus the praise. Hallelujah. But आप in जानते knowing- हैं, लेकिन in आप knowing- जानते हैं in knowing Jesus, कि यीशु मसीह, we need to know him more and more and more. हमें जरूरत है, चाहे हम बचपन से जानते आए हैं, यीशु मसीह को और ज्यादा जाने और ज्यादा जाने और ज्यादा जाने. And that is very important for us. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा जाने. For all of us to grow, हम सब जो एक साथ बढ़ रहे हैं, mature,
और जब मिच्योर हो जाते हैं in our Christian life. हमारी जो क्रिश्चियन लाइफ है, हमारी जिंदगी, मसीही जिंदगी में But what are the things that we should do? हमें क्या सोचना चाहिए कि हम क्या करें? Do you want to know? आप जानना चाहते हैं? Amen. हालेलुया! Are you excited? आप एक्साइटेड हैं? Amen. हालेलुया! But before that, let us all stand once आइए again. हम सभी May I अपनी ask you जगह पर all, खड़े होंगे. this is, we don't miss this one, okay? Because this is a हम इस very, लम्हा को very मिस important, ना करें, this is a very, very important क्योंकि ये declaration. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे Okay. लिए. Let's shout, Jesus is Lord. Let's raise our hand. अपने हाथों को उठाइए. Jesus is Lord जीसस इज लॉर्ड over my life. ओवर माय लाइफ. Jesus is Lord जीसस इज लॉर्ड over Pakistan. ओवर पाकिस्तान. Jesus is Lord जीसस इज लॉर्ड all over India. ऑल ओवर इंडिया. Jesus is Lord जीसस इज लॉर्ड all over my family. ऑल ओवर माय फैमिली. I love you, Jesus. I love you, Jesus. You are my Lord. You are my Lord. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. and तालियां Amen. बजाइए. Praise God. Praise God. So we may now be seated in the presence आइए of हम the बैठ Lord. जाएंगे खुदावंद की हजूरी में. So I have been given only to share with you आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 hours. Is that okay? 3 घंटे का मैसेज आपके साथ शेयर करूंगा. So we will be finished maybe 9 o'clock, brother. और हम It's आज fine. चाहेंगे कि 9 बजे खत्म करें इस मैसेज को. It's fine. ये So- ठीक है? Kidding aside, you know, this is the word of God today. This is actually a teaching, no? This is actually a teaching for us to grow. आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे मसीही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं. And this teaching is a biblical principles. और ये Biblical. बाइबल की टीचिंग है, किसी इंसान की नहीं है. Yeah, it's coming from the Bible itself. So the title of this teaching is 5 steps. आज का पाकलाम का Christian जो growth. अनुमान है वो ये है कि 5 स्टेप हैं क्रिश्चियन ग्रोथ में. हालेलुया. That's why I ask you आज मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं that the baby, कि बच्चा जो होता है, okay, had been grown up. और जब जवान हो रहा होता है, No baby here, right? So we don't have outside. वी हैव Okay. आउटसाइड जायरा. Yeah. So Yes. maybe in the coming years, 5 years, 10 years, he will be growing up or she will be growing up, right? But this 2 Peter 3:18 says, और जब हम देखते हैं दूसरा पत्रस उसका 3 बाप उसके 18 आयत मेरे साथ निकालिए. grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 3 का 18 निकालिए. जिनके पास बाइबल है, मोबाइल में अगर है तो निकाल लीजिए. We need to grow. Tell to your neighbor, जिनके पास बाइबल है निकाल लीजिए. tell to your neighbor, we need to grow. एक दूसरे को बताइए कि हम यीशु मसीह में जवान हो. Okay. कहिए एक दूसरे को. हालेलुया. Okay. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Usually, brother, Yes. I speak very fast, but you No know, problem. since Yes. you are here, Hmm. so maybe 4 hours, okay, we will finish the teaching. It's fine. ये जो Okay. हम बता रहे हैं हो सकता है 4 घंटे में खत्म हो जाए. Okay, just kidding. But this is the point. बस ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपको पॉइंट्स मैं दूंगा आज. Tell to your neighbor again, grow. एक दूसरे से बोलिए कि हम ग्रो करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. Okay? All right. So, grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ, our Savior. So, this यीशु is, मसीह में हमें आगे बढ़ना चाहिए. So यीशु this- मसीह की तालीम में आगे बढ़ना चाहिए. यीशु मसीह के कामों में हमें आगे बढ़ना चाहिए. paki-click po. जिन्होंने देख लिया है वो दूसरा पत्रस उसका 3 उसका 18 निकाल लीजिए. Click nyo na lang. Doesn't work. So, maybe we can. Okay. So, I'm reading my PowerPoint. It is God's will that every believer अगर अभी मैं पढ़ूंगा कि ये खुदावंद के बिलीवर जो हैं उसके लिए उनकी क्या पावर होती है और कैसे वो ग्रोइंग करते हैं. It is God's will that every believer grow strong
खुदावंद की मर्जी है कि हर ईमानदार ताकतवर आगे बढ़े और ग्रो हो, that he may be steadfast against trials, क्योंकि वो हमारे लिए खड़ा होता है, हमारे लिए आगे बढ़ता है और हमारे लिए वो काम करता है जिनकी हमें हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में जरूरत है, and temptations. और हर मुश्किल में हमारे साथ होता है, In so doing, और जो भी वो करता है remain in his salvation. और बस वो अपनी निजात को हमारे लिए लेके आता है। हालेलुया, Amen. आमीन। So we were going to study about the steps to Christian growth. अभी हम क्या करेंगे कि 5 स्टेप है हमारे कि खुदावंद के बंदे, खुदावंद के लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। Okay, so you know the plans, you know. आप जानते हैं खुदावंद का क्या We प्लान don't है? have plans here, real plans actually. That plans in order to survive, हमारा जो प्लान है या खुदावंद का जो प्लान है कि कैसे हम सरवाइव कर सकते हैं। you need to put water every day, right? हमें जरूरत है कि हर रोज हम पानी पिए। Who is gardener here? सॉरी, Who is gardener? You know, farmer. कोई माली है इधर? No? बिफोर आई एम Oh, gardener, yes. so you know. यस आई नो, Right? यस आई नो। So that plant, first it's a seed, right? पहले जब मैं पाकिस्तान में पहले मालियों का काम कर चुका हूँ, गार्डनर था मैं पाकिस्तान में, तो हम पहले क्या करते थे, बीज बोते थे। यस Okay, so you take care of that plant. यस, You put water, you put जब हम fertilizer, बीज लगाते हैं तो उसके लिए हमें पानी देना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसको खाद डालनी पड़ती है, and then it will grow. और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है। And then what will happen? It will produce fruit. और उसके बाद क्या होता है कि जब वो बड़ा हो जाता है, आप सब जानते हैं कि गंदम का बीज लगाते हैं तो एक दाना जो है 40 या 45 दाने बाद में देता है। So if you plant a mango seed, अगर आप आम का दरख्त लगाते हैं या बीज लगाते हैं, when you put fertilizer, और जो भी आप उसमें खाद डालते हैं बाद you में, watered that mango plant, और आपने पानी दिया आम के दरख्त को, and then it will produce और fruit, उसके बाद वो फल देना शुरू कर देता है। right? हालेलुया। So the same thing with us. और ये सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। We need to grow, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, and we need, in order for us और हमें और ज्यादा आगे बढ़ने की to जरूरत produce fruit. है कि खुदावंद की हजूरी में फल लेके आए। Okay? हालेलुया, Amen. आमीन, Amen. Amen. So that's the reason why we need to grow. So next, ये वजह है कि हम क्यों खुदावंद में आगे बढ़ते हैं। so like a plant in our spiritual life, in आप भी order, अपनी जिंदगी में प्लांट लगाइए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल जिंदगी में। in order for us to grow, आगे बढ़ने के लिए we need prayer. हमें जरूरत है दुआ करने की। Who is praying? Be honest. कौन कौन प्रेयर करता है? हालेलुया, सभी करते हैं। Who prayed before he came here? I know किसने all of प्रेयर us. की है? किसने प्रेयर की है इससे यहाँ आने से पहले? Amen. हालेलुया। Amen. So prayer दुआ जो है is one वो एक of यस of the things that we need to do in order for us to grow. दुआ जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। 1 Thessalonians 5:17 says, जब हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीयंस उसका 5 उसका 17, pray without ceasing. बिला नागा दुआ करो, Pray without ceasing. बिला नागा दुआ करो। So prayer is a conversation. दुआ जो है खुदावंद के साथ बातचीत करने का जरिया है। Back, say slide po. Say slide na lang. आप सब देख सकते हैं पहला थिस्सलुनीयंस उसका 5 Say slide उसका na lang. 5:17। Pakita yung verse para mabilis tayo. Prayer is a conversation with God where one can express. जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद के साथ बातचीत करते हैं। So when you pray, जब हम दुआ करते हैं you are talking to the Lord. तो हम खुदा के साथ बात कर रहे होते हैं। You are conversing with the Lord. आप खुदावंद के साथ बातचीत कर रहे होते You हैं। are telling him what you need, आप उसे बता रहे होते हैं कि मेरी क्या जरूरत है। right? राइट?
So you are talking to him like your friend. आप खुदा के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे आपका दोस्त है वो, But actually, the Bible said लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है but we should pray हमें दुआ करनी चाहिए to the Father. बाप के सामने, That's why Jesus taught his disciple क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों से कहा how to pray. कैसे प्रेयर करनी है। Our Father, ऐ हमारे बाप, thou art in heaven, तू जो आसमान पर है, hallowed be thy name. तेरा नाम पाक माना Thy जाए, kingdom come, तेरी बादशाही है, thy will be done तेरी मर्जी on जैसी earth आसमान पर पूरी as होती it है, is जमीन पर भी हो, in heaven. जैसी आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। So prayer दुआ जो है is a conversation with God. खुदावंद के साथ बातचीत करने का जरिया है। Gratitude for his goodness. और उसके लिए तैयार हो जाएं और उसके लिए ग्रेटिट्यूड हो जाएं। Guilt for sinning against him. और जो भी आपके दिल में है खुदावंद के हुजूर में बोलिए। Believe in his power to answer one's needs. उसकी ताकत पर, उसकी कुव्वत पर यकीन कीजिए Confidence in entrusting one's life in his hands. और उसके ऊपर यकीन कीजिए पूरे दिल से, पूरी जान से। You pray to him, you और pray जब- to God और जब दुआ करते हैं खुदावंद से हम, because you are entrusting क्योंकि आप बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं your खुदावंद life पर unto him. कि आपकी जिंदगी जो है उसने दी है आपको। Amen. आमीन, हालेलुया, Amen. Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Let's give clap of praise to our आइए हम living God. तालियां बजाएं। So prayer is an utterance that is addressed to the Father. और जब हम दुआ करते हैं तो ये हमारे लिए एक एंट्रेंस है खुदावंद के साथ बात करने की। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में enter the power of the Holy Spirit. जब हम एंटर होते हैं उसकी पाक रूह की कुव्वत में, So in Matthew 6:6 says, और जब But- हम देखते हैं मत्ती के अंजील उसका 6 बाब उसकी 6 आयत, but when you pray, go into your room, जब आप close दुआ the करो, door. जब आप दुआ करो, I will read all then better. Okay? यस Okay. But when you pray, into your room, close the door and pray to your Father जब who भी is दुआ करो, unseen. लिखा हुआ है मैथ्यू की मत्ती के अंजील उसका 6 उसकी 6 आयत में, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। So we pray to हम our दुआ Father. करें खुदावंद से, Okay, we pray to our Father. हम आसमानी बाप से बात करें। That is our relationship to our God. He ये is our हमारा Father. खुदावंद के साथ रिश्ता है। Amen. हमें And you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last. And so, whatever you ask in my name, Jesus said, whatever we ask in the name of Jesus, the Father that we are asking, the Father will give it to us. यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। हालेलुया, Praise प्रेज़ the द Lord. लॉर्ड, हालेलुया। Click pa. And one thing more, Ephesians 6:18, जब हम and देखते हैं pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pray in the Spirit in all occasions. खुदावंद के पाकलाम में लिखा हुआ है इफिसियों 6 बाब उसकी 18 आयत में, और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन, हालेलुया। So the more we pray, जब हम और ज्यादा दुआ करते हैं the more we grow. हम और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। So the less we pray, what will happen? जब हम दुआ कम करना शुरू कर देते हैं We will not grow. हम आगे भी नहीं बढ़ते। Amen. हमें So we need to pray. हमें जरूरत है कि दुआ करते रहें, बिला नागा दुआ करें। And there is a pattern of prayer that we can use.
जब हम खुदाम से दुआ करते हैं तो हमें तरीका क्या यूज करना चाहिए? Psalms 95 verse 6. This is an adoration. जब हम देखते हैं साम्स यानी ज़बूर की किताब उसका 32 उसका 5, तो हमें पता चलता है We praise God for who He is. हम खुदाम से दुआ करें कि जो है और वो कुव्वत वाला है, And we confess और हम अपने आप को अपने आप को मनवाएं और माने इस बात को we repent for all our sin. कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, And then we thank Him for everything, और फिर खुदावंद का शुक्र करें हर the एक good बात के things लिए that He has done in our life. जो उसने हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा किया है, And supplication. और सब जो है खुदावंद को सबमिट करते This is our request. This is our petition. हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट है, ये हमारी पिटीशन है तेरी हजूरी में जलाली खुदा। Amen. आमीन। Praise God. Let us Hallelujah. give Praise the the clap Lord. of praise to our living God. So that's the first step to Christian growth. ये पहला स्टेप है कि कैसे मसीही लोग ग्रो कर सकते हैं। Prayer. दुआ करें, So make it a habit. और ये अपनी आदतों में शामिल कर लीजिए कि हमने दुआ करनी है, दुआ करनी है और दुआ करनी है। Every day we need to pray. हर रोज हमें दुआ करने की जरूरत है। Amen. हमें Like, the food we are eating, it's a habit. जब हम आप सब जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं ये हमारी जिंदगी की आदत बन चुकी है। How many of you eating here 5 times a day? कौन कौन है जो 5 टाइम एक दिन में खाते हैं? Not there. Yes. Nothing? Yes, not. Maybe 6, huh? Not 5. No, no. No? Yes. Okay. Just kidding. But, the point here is that prayer, we cannot miss this. जब हम दुआ करते हैं तो हमें मिस नहीं करना चाहिए। If we want to grow, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, we need to pray. हमें जरूरत है कि हम दुआ करें। Make it a habit. ये हमारी आदतों में शामिल हो जानी चाहिए, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है pray दुआ करें, without ceasing. दुआ बिला नागा दुआ करें। Don't stop praying. आप अपनी दुआओं को स्टॉप ना करें। Amen. आमीन। Okay. हालेलुया। Amen. Let us give a Praise clap the of Lord. praise to our living God. So the second step दूसरा स्टेप जो है to Christian growth कि कैसे खुदावंद के लोग आगे बढ़ सकते हैं। is Bible reading. Who loves to read the Bible? कौन कौन तुरेत की बाइबल को प्यार करता है? अपने हाथों को उठाकर बताइए, कौन कौन तुरेत की अंजील को, बाइबल को प्यार करता है? Who has a Bible? Who has a Bible? वो हाथ चुकन ही नहीं दे। All of you. आप सब Electronic. खुदावंद के पाकलाम से प्यार करते हैं? हालेलुया। Yeah. All of you has a Bible. आप सबके पास बाइबल है, But the question is, do we read our Bible? लेकिन सवाल ये है कि हमें बाइबल लेके आनी चाहिए। किनके पास बाइबल है? अपनी बाइबल दिखाइए। Amen. Amen. बुक जो है, बुक बाइबल। See, Joshua 1 verse 8 says, जब हम देखते हैं यशुआ की किताब उसका पहला बाप उसकी 8 आयत को, raise your Bible if you have a Bible. अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को ऊपर कीजिए। Electronic Bible, raise it, your cell phone, your अगर mobile. आपके पास मोबाइल में बाइबल है तो आप उठाइए। हालेलुया। Keep this book of the law always. शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। Tell to your neighbor always. शरीयत की किताब ये तेरे मुंह से कभी ना हटे। एक दूसरे को बोलिए हालेलुया। Not sometimes. सिर्फ एक कभी कभी नहीं बोलना है। Meditate on it इसको हर रोज आप पढ़िए, day and night, और दिन और रात, so that you may be careful to do everything written in it. दिन रात हमें इसी का ध्यान रहना चाहिए। Then you will be prosperous and successful. फिर जो है हम कामयाब होंगे और खुशखबरियों को हासिल करेंगे। हालेलुया। आप सब जानते हैं यशुआ की किताब उसका 1 बाप उसके 8 आयत को पढ़ सकते हैं आप। लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है
उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे अकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Amen. You know, Joshua, आप जानते हैं कि यशुआ को that जानते हैं? कौन कौन जानता है यशुआ को? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। he is the successor of Moses. ये जो है खुदावंद के बंदा मूसा से भी ज्यादा कामयाब था। When Moses died, जब खुदावंद का बंदा मूसा मर गए, then Joshua came. फिर यशुआ आए He continued the mission. और उसने जो भी खुदावंद का काम था मूसा के बाद यशुआ ने जारी रखा। And the Lord told Joshua और खुदावंद ने यशुआ से कहा to be strong and courageous. कि मजबूत हो जा और आगे बढ़, And for him to be strong and courageous, और दूसरों को भी बता और मजबूत हो जा। he need, pakibalik po doon sa Joshua 1 verse 8 po muna. He need to keep उसे जरूरत थी कि आगे बढ़े। the book of the law खुदावंद के पाकलाम की जो शरीयत Always. किताब है हमेशा अपने साथ रखे, day and night दिन और रात, for him उसके लिए to be strong कि वो मजबूत रहे and courageous. और दूसरों को भी बताए और अपने आप को भी इल्म वाला बनाए। That's हालेलुया। why, that's why if we love, if we read, if we meditate the word of God, इसीलिए अगर आप पाकलाम को पढ़ते हैं और खुदावंद के पाकलाम से प्यार करते हैं, then and only then फिर जो है we will grow. हम क्या होते हैं कि बढ़ते हैं, आगे We will बढ़ते जाते become हैं strong और हम मजबूत होते जाते हैं and we will become healthy और हम spiritually. क्या होते हैं, पावरफुल बनते जाते हैं। Amen. आमीन। So we should not miss और हमें उसको रोकना नहीं चाहिए, the word of God. खुदावंद के पाकलाम को पढ़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। Amen. आमीन। How important the word of God is. आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है खुदावंद का पाकलाम? ऊंचे आवाज से, बहुत ज्यादा। हालेलुया। I have one example, much, brother too much. Asher. I Yes. have one example. मेरे पास एक मिसाल है। When you buy this mobile, जब हम ये मोबाइल खरीदते हैं, you bought like this or there is a box? जब हम बाइबल I'm asking मोबाइल, you. यस, I'm asking you. You bought like this or there is a box? नो दिस बॉक्स, So what inside the box? और चार्जर एंड मोबाइल एंड बैटरी एंड हेडफोन ऑल्सो। You miss one thing, brother. The most important, the manual. मैनुअल, ये How to operate this mobile. आफ्टर रीडिंग द मैनुअल Yeah. देन ऑपरेट द मोबाइल। So we have manual in this life. Tell them. ये खुदावंद का जो पाकलाम है हमारे लिए क्या है? नक्शा है कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। ये जिंदगी के लिए किताब है। जैसे गाड़ी हम खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं, उसके साथ क्या आता है? मैनुअल आता है पढ़ने के लिए कि कैसे इसको आपने आगे पढ़ना है, कैसे इसको मोबाइल को चलाना है, कैसे कार को चलाना है या कैसे बस को चलाना है। उसके साथ एक नक्शा आता है, एक बुक आती है। So this mobile, ये मोबाइल जो है, it could be, you could damage this mobile. आप इसको डैमेज कर सकते हैं Once you will not going to read the manual. अगर आप मैनुअल को पढ़ते नहीं है तो आप इसको डैमेज कर सकते हैं। Right? ये इसी तरह है, इसी तरह है। हालेलुया। अरसलान भाई थोड़ा तान। Same इसी thing. तरह है, Same thing with the Bible. इसी तरह हमारी ये बाइबल है। That's why we need to read. इसीलिए हमें बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। This is the manual of our life. ये हमारी जिंदगी के लिए नक्शा और मैप है और मैनुअल है हमारी जिंदगी If के लिए। you don't read the manual of your life, अगर आप अपनी जिंदगी में बाइबल नहीं पढ़ते, then your life, फिर आपकी जिंदगी, or you could damage your life. और आप अपनी जिंदगी को खराब कर सकते You हैं। could ruin your life आप अपनी जिंदगी को गलत राहों पर लेके जा सकते हैं and you will not going to grow. और आप और मैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं अगर पाकलाम को नहीं पढ़ते। Amen. आमीन। हालेलुया। Amen. प्रेज द लॉर्ड। That's why the Lord said, इसीलिए खुदावंद ने कहा है this book of the law, ये शरीयत की किताब always, हमेशा, because this is important.
हमारे लिए बहुत अहमियत वाली ये किताब है for us to grow हम spiritually. सब के लिए कि हम आगे बढ़ सकें हालेलुया Amen. आमीन Click po. Skip natin yan. So, this is the Bible, the inspired revelation of God to men. This is खुदावन the जो है इस बाइबल के जरिए अपने वेद खोलता है हमारे ऊपर हालेलुया this is not coming from men. ये किसी इंसान की तरफ से नहीं आई है This coming from God. ये खुदावन से आया है पाकलाम This हालेलुया This is the revelation of from God to men. खुदावन के जो वेद हैं वो खुदावन ने इंसान के लिए भेजे हैं इस दुनिया में बाइबल के जरिए से Because all scripture क्योंकि इसमें जितने भी स्क्रिप्चर हैं is God breathed. खुदावंद के जलाल को और खुदावंद की कुदरत को जाहिर करते हैं In Jesus is Lord Church, जीसस इज लॉर्ड चर्च में we don't choose what we teach. हम खुद जो है कुछ नहीं बताते हैं हालेलुया Amen. आमीन We don't choose what we teach. हम खुद से नहीं कहते कि हम क्या लोगों को बताएं Because this is scripture क्योंकि ये स्क्रिप्चर जो है is God breathed. खुदावंद की तरफ से हमारे लिए खाना है रोटी है If we miss some of them, अगर आप किसी टाइम पर इसे मिस करते if हैं we choose अगर आप चूज करते हैं to teach, कि दूसरों को बताएं then फिर God will not going to be happy. खुदावंद हमसे खुश नहीं होता है Amen. आमीन That's why इसीलिए the second Timothy 3:16 says, जब हम दूसरा तिमोथी उसका 3:16 देखते हैं this is useful. कि ये हमारे लिए बहुत काम की है This is very useful बहुत हमारे लिए यूजफुल है for teaching, बताने के लिए for rebuking, और जो भी इल्हाम की बातें हैं वो बताने के लिए correcting, को करेक्ट करने के लिए training in righteousness, और हमें ट्रेन करने के लिए like what we are doing now. जो भी हम करते हैं Amen. आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन Galatians chapter 1, 11 to 12. गलतियों की किताब जब हम देखते हैं पहला बाप उसकी 11 और 12 आयत को Same pa rin po. For I certify to you, brothers, that the gospel I preach was not devised by men. Apostle Paul is saying that the gospel he's teaching खुदावन is का not खुदावन coming का from पाकलाम men. कहता है खुदावन के बंदा पौलुस रसूल कहते हैं ऐ भाइयों मैं तुम्हें जिताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान सी नहीं क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ हालेलुया Praise the Lord. Amen. Who has known the mind of the Lord so as to instruct him. ये खुदावन But की we तरफ से have the मुझे mind of Christ. ये मुझे खुदावन की तरफ से इल्हाम हुआ है Praise God. Praise the Lord. So the Bible खुदावन का पाकलाम is the inspired revelation of God to men. के खुदावंद के जो वेद हैं बाइबल इंसानों के ऊपर जो है उसको खोलते हैं हालेलुया Amen. आमीन Click po. The Bible is a written proof of God's loving plan to rescue mankind from eternal death and damnation. खुदावंद का पाकलाम जो है वो हमारे लिए प्यार करना सिखाता है और हमारे लिए कैसे हम दूसरों की हेल्प कर सके मदद कर सकते हैं ये सिखाता है और खुदावंद हमें ये बताता है कि दूसरों पर कैसे मेहरबान रहना है हमने हालेलुया That's why you will read it here. इसीलिए हमने खुदावंद के पाकलाम में से देखा God's plan for your life. कि खुदावंद आपकी और मेरी जिंदगी में मकसद रखता है God's plan for your family. खुदावंद आपकी फैमिली के लिए और मेरी फैमिली के लिए मकसद रखता है You will read it here. खुदावंद के पाकलाम को आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं The promises of God कि खुदावंद के वादे हमारे साथ क्या हैं that will give us hope. जब हम पढ़ते हैं तो ये खुदावंद का पाकलाम हमें उम्मीद देता है And this is a proof ये प्रूफ है खुदावंद की तरफ से that God कि खुदावंद loves
कि खुदावंद प्यार करता है, each and every one of us. हर एक के साथ प्यार करता है। हालेलुया, Amen. आमीन, Amen. आमीन। That's why this is the love letter of the Lord. ये खुदावंद की तरफ से हमारे लिए प्यार भरा खत है। Do you write love letter in India or in Pakistan before? इन पाकिस्तान, यस Yeah. यस To your wife, you write him love letter. यस You यस। tell them. और जैसे हम एक दूसरे को, चाहे मंगेतर होती है या कोई भी होता है, माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, जैसे हम लव लेटर लिखते हैं एक दूसरे को। So what is your feeling when you first received the love letter coming from your wife? Yes, What- we what are you- so, you are we very- so, yes, we feel so happy and See? so, yes. See? जब हम कभी भी एक दूसरे का लव लेटर लेते हैं, वो चाहे माँ बाप का हो सकता है, बहन भाई का हो सकता है, आपकी मंगेतर का हो सकता है, आपकी बीवी का हो सकता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। Amen. हालेलुया। This is the love letter of our Lord. खुदावंद to all की of तरफ us. से ये आप सबके लिए और मेरे लिए लव लेटर है। So मेरे when we भाइयों। read it, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। so when we read it, जब हम इसको पढ़ते हैं, we're excited. हम एक्साइटेड हो जाते हैं। When we hear it, जब हम सुनते हैं, we are excited. हम एक्साइटेड हो जाते हैं। Like now, are you excited? आप एक्साइटेड हैं? Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Amen. आमीन। It will give us joy. खुदावंद हमें जॉय देता है, It will give us hope. खुदावंद हमें उम्मीद देता है, It will give us peace खुदावंद हमें अमन शांति देता है। that passeth all understanding. और जो कुछ भी है खुदावंद का पाकलाम हमें बताता है। That this हालेलुया। word of God ये खुदावंद का पाकलाम will always हमेशा our hope हमारी उम्मीद है, in our life. हमारी जिंदगी के लिए उम्मीद है। Amen. आमीन, Praise God. हालेलुया। Hallelujah. So next, अगला The हम Bible- देखते हैं, mold Christians to become more like Jesus. खुदावंद का पाकलाम हमें ये बताता है कि यीशु मसीह की तरह बनिए। We know we see or we saw खुदा, हम जानते हैं कि हमने देखा है और हमने सुना है, हमने रिसीव किया है God's precious plan खुदावंद के हमारे लिए बड़े बड़े जो मकसद हैं, to all of us. हम सब के लिए जो मकसद हैं। God खुदावंद wants us एक बार to be like Jesus. कि यीशु मसीह खुदावंद की तरह और खुदावंद यीशु मसीह की तरह है। And how can we find that? हाँ, हम कैसे जान सकते हैं It इस is बात को here in His Word. कि खुदावंद के पाकलाम से जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है। Amen. आमीन। The Bible does guide Christians to know and understand God's thoughts, plans, and promises. खुदावंद का पाकलाम हमें गाइड करता है कि कैसे हम खुदावंद के प्लान को अपनी जिंदगी में जान सकते हैं। हालेलुया, Amen. The Bible help man realize his or her need for खुदा- God. खुदावंद का पाकलाम हमें हेल्प करता है और हमें गाइड करता है और हमें बताता है कि हम कैसे खुदावंद में आगे बढ़ सकते हैं। When we read the Bible, जब हम खुदावंद के पाकलाम को पढ़ते हैं, that's the time उस टाइम we know हम जानते हैं and we realize और हम रियलाइज करते हैं that we need God. कि हमें खुदावंद की जरूरत है, That every human being, और हर इंसान को खुदावंद की जरूरत है। that every man, हर एक मैन को, every woman, हर एक औरत को, हर एक मर्द को, they cannot live वो खुदावंद कभी छोड़ता नहीं है उसको। without God. खुदावंद के बगैर हम कुछ भी नहीं है। Without relationship with Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के साथ अगर हमारा रिलेशनशिप नहीं है तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता Because है। Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, John 14 verse 6, यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब उसकी 6 आयत में, I am the way, मैं राह और हक हूँ, the truth, राह और हक हूँ and the life. और सच्चाई No one comes to the Father और जिंदगी हूँ, और कोई भी बाप के पास नहीं जा except सकता through है। me. मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता है। Amen. हालेलुया। So where we will gonna read that? We can only read that in the Bible. जब हम कोई भी पढ़ते हैं पाकलाम को पढ़ना चाहिए, जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो पाकलाम को पढ़ना चाहिए। You cannot read that in Facebook खुदावंद के or in पाकलाम को newspaper. न्यूज़पेपर ना देखिए, फेसबुक ना देखिए, Only in the Bible. सिर्फ खुदावंद के पाकलाम को देखिए। Amen. हालेलुया,
आमीन Amen. आमीन। So that's the second thing. The first thing, the first step पहला toward जो Christian स्टेप growth. था कि कैसे खुदावंद के लोग आगे बढ़ सकते हैं। If we want to grow, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, if we want to be strong spiritually, अगर आप रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते हैं, if we want to grow spiritually, अगर आप रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते what हैं, do we need to do? क्या करने की जरूरत है? हमें We need to pray. हमें प्रेयर करने की जरूरत है। Make a habit to pray. हमें आदतों में शामिल करने की जरूरत है। We need to read. हमें खुदावंद का पाक कलाम पढ़ने की जरूरत है। We need to love हमें खुदावंद के पाक कलाम से प्यार करने की जरूरत the है। word of God. खुदावंद के पाक कलाम से। Amen. आमीन। Do you want more? आप और से चाहते हैं? हालेलुया। Amen. Let us give the प्रेज द basket लॉर्ड। of praise अपने to our हाथों का living God. इस्तेमाल कीजिए। So, Brother Asher, यस। the third step is witnessing. तीसरा स्टेप जो है वो गवाही का है। You know what is witnessing? आप सब जानते हैं कि क्या हम गवाही देते हैं? Who invited you to this gathering? आपको किसने इस जगह पर बुलाया है? Who? गॉड इनवाइट। No. दे से गॉड इनवाइट। Yeah, I know. नहीं, दुनियावी तौर पर क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਯੈਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲॉर्ड। So that is called witnessing. ये गवाही है। इसको हम कहते हैं कि ये गवाही है कि मैंने आपको इस जगह पर बुलाया है। Brother Asher invited you to this gathering. मैंने आपको बुलाया है इस गैदरिंग में, And that is witnessing. और ये गवाही है। हालेलुया। So if you want to grow, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, if you want to be strong spiritually, अगर आप रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते we हैं, need to practice witnessing. हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिहर्सल करनी चाहिए Like- गवाही देने की। Like Brother Asher did to each of you. कि जैसे मैंने आपको बुलाया इसी तरह आप दूसरों को भी बताएं। हालेलुया। So next Friday, अगले फ्राइडे God is expecting each one of you खुदावंद आपसे चाहता है to bring कि लेके आए one of your friends. आपका जो भी फ्रेंड है, जो भी आपका भाई है या बिजनेस पार्टनर है, उसे आप लेके आइए। Amen. आमीन। Can you do that? आप करना चाहेंगे ऐसा? हालेलुया। So Pastor Harvey, खुदावंद के बंदा हार्वी, prepare the what's that? The overflow. So this place will be full. So how many of us today? आज कितने हैं? She will see. 30? No. Okay, later on the record will be maybe 30. So आज next, हम देखते हैं कि हम कितने हैं। So 30 next हैं या Friday, 35 हैं। we will become अगले जुमा को 60. अगले जुमा को हमें 60 बन के आने की जरूरत है। हालेलुया। Amen. आमीन। And next month it will be doubled again. और आने वाले Amen. दूसरे महीना में हम डबल हो जाएं। हालेलुया। That is witnessing. ये खुदावंद की गवाही है। See, Jesus is Lord Church Eastern Region जीसस इज लॉर्ड चर्च जो ईस्टर्न रीजन में है, has 9 outreaches, 9 churches. इस रीजन में क्या है? 9 चर्चेज हैं। Because we are continuously witnessing. क्योंकि हम लगातार खुदावंद की गवाही देते हैं। And- हालेलुया। And brother, what's the name of the Brother Joseph, यस, ब्रदर जोसेफ, used by God यूज्ड बाय गॉड। to खुदावंद invite you. भाई जो जोसेफ हैं, जिनके जरिया से मैं इस जगह पर आया, खुदावंद ने उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। And God used Brother Asher और खुदावंद ने बात में मुझे इस्तेमाल किया to all of you. कि आप सबको बताऊं। That's why you are here. इसीलिए हम इस जगह पर मौजूद हैं। हालेलुया। Let us give praise to our living हालेलुया। God. क्लैपिंग Amen. करें जिंदा यीशु नासरी के नाम में। And now is your turn अभी आपकी बारी है to be like Brother Asher. कि जैसे ब्रदर जोसेफ ने काम किया, आप भी करें दूसरों के लिए। हालेलुया। Amen. आमीन। वो बहुत स्लो बोलते हैं आमीन। आप ऊंचा बोलिए आमीन। ओ Praise the हालेलुया, Lord, praise the hallelujah. Lord, हालेलुया। See? Acts 1:8 says, और जब हम देखते हैं अमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8 आयत,
You will receive power when the Holy Spirit comes on you. जब हम देखते हैं, लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा, The Holy Spirit is the third person of our God. और जो खुदावंद का पाक रूह है, ये तीसरा खुदावंद का हिस्सा है, And He is here with us. और खुदावंद का पाक रूह इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। Amen. He is empowering us. और हमें वो कुव्वत देता है। That's why इसीलिए you will be, the Holy Spirit comes on you, you will receive power. और जब खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, What's the लेकिन जब purpose? रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। And the purpose of this power, और खुदावंद का ये पावर देने का मकसद है, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा you will be my witness. कि तुम मेरी गवाही दोगे। Amen. आमीन। Amen. Like Amen. Brother Asher. और भाई जोसेफ की तरह आप भी गवाही देंगे। हालेलुया। Amen. आमीन। So, all of us, हम सब जो हैं, each of us, हम सब एक दूसरे के all साथ, of you आप सब, is a witness. आप सब और हम सब गवाह हैं। If we want to grow, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, if we want to be spiritually matured or strong and healthy, अगर आप रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते हैं, अपनी बातों को बंद कीजिए, खुदावंद के पाक कलाम की तरफ ध्यान लगाइए। we need हमें जरूरत है to be a witness कि गवाह बने, of Jesus. यीशु और मसीह के गवाह बने। Amen. आमीन। And tell to your friends, और आप एक दूसरे को कहिए, I have a church. मेरे पास चर्च है, Jesus is Lord जीसस Church. इज लॉर्ड चर्च है। I हालेलुया। went to that church, और मैं इस जगह पर आता हूँ, and Jesus और यीशु और मसीह, is changing my life on that church. यीशु और मसीह मुझे मेरी जिंदगी के लिए बताता है And कि you मैंने should क्या करना come, है। brother, और जब हम आते हैं इस जगह पर, and experience my Jesus. और जब हम तजर्बा करते हैं कि यीशु और मसीह He is यहाँ पर real. मौजूद है, वो यहाँ पर काम करता है, He is real, और वो हम इस जगह पर आगे बढ़ने के लिए काम करता and है। He can also change your life. और खुदावंद आपकी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत रखता है। Amen. आमीन। Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Praise the Lord. Lord। So all of us हम सब जो हैं, is a witness for Jesus. हम गवाह हैं। Amen. आमीन। Witnessing is sharing one's faith in Christ to others. जब So हम that अपने they- ईमान को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, so that they also know and follow Him. और जब हम एक दूसरे के साथ ईमान का तबादला करते हैं, तो हम एक दूसरे के लिए खुदावंद की गवाही बनते हैं और दूसरों को बढ़ाने के लिए गवाही बनते हैं। हालेलुया। Amen. You Amen. don't need to be afraid. सॉरी, You don't need to be afraid. आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। Amen. आमीन। You don't need to be afraid like Brother Asher. आपको डरने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। He spoke मैं बोलता हूँ जब God's voice. खुदावंद की आवाज को हम सुनते हैं। हालेलुया। He invited you all. और मैंने आप सबको बुलाया है। As Romans 1 verse 16 says, जब हम रोमियो की किताब देखते हैं तो हमें पता चलता है, I am not ashamed of the gospel मैं खुदावंद के पाक कलाम को बताने के लिए शर्माऊंगा नहीं। हालेलुया। because it is the power of God क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से मुझे कुव्वत देता है that brings salvation और निजात देता है। to those who believe. जो भी ईमान रखता है, खुदावंद उसे निजात देता है। हालेलुया। आमीन। Acts 22, chapter 22. God has chosen you. खुदावंद ने पाकलाम में, खुदावंद के पाकलाम में लिखा हुआ है, अमाल की किताब उसका 22 बाब उसकी 14 और 15 में, कि खुदावंद ने आपको और मुझे चुन लिया है। हालेलुया। God has chosen you to be His witness. खुदावंद ने आपको इसलिए चुना है कि उसकी आप गवाही दें। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So this is very important ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, because this is the command of Jesus क्योंकि ये खुदावंद के हुक्म है to His disciple during that time. अपने शागिर्दों के लिए। It's called the Great Commission.
ये बताता है कि ये ग्रेट कमीशन है खुदावंद का। Matthew chapter 28. जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 28 बाब, It's called Great Commission ये ग्रेट कमीशन कहलाता है because it was given क्योंकि खुदावंद ने हमें दिया है, by a great person. एक ग्रेट पर्सन बना के दिया है। Who is that person? वो आप सब जानते हैं कौन है? Tell to your neighbor. एक दूसरे को His बताइए। name उसका नाम is Jesus. यस्सु है, उसका नाम यस्सु है, एक दूसरे को बताइए। हालेलुया, Amen. आमीन, हालेलुया। So if this is the command of Jesus, ये यस्सु अल मसीह के हुक्म है, then what we should do? जब फिर हमें क्या करने की जरूरत है? We should obey, हमें उसके हुक्मों को मानने की जरूरत है। or are you going to disobey? आप हुक्मों को मानेंगे और या नहीं मानेंगे? ओबे, Obey. हालेलुया। You remember Jonah? सॉरी, Jonah. आप सब जानते हैं Who knows Jonah? योना को कौन कौन जानता है? Eaten by a big fish. भाई इधर गौर कीजिए। Why तनवीर भाई, जोना को कौन कौन जानता है? हालेलुया। why he was eaten by a big fish? Why? क्यों योना को बड़ी मछली ने खाया था? Because God told him क्योंकि खुदावंद ने उसे कहा था to be his witness to Nineveh. कि गवाही, मेरी गवाही दे नैनवा में जाके। But what he did at first, लेकिन उसने क्या किया? he disobeyed God. और उसने खुदावंद के हुक्म नहीं माने He went to Tarshish. और वो तरतीस को चला गया। What happened? उसके बाद क्या हुआ? On that big ship, ओ बड़ा जहाज जो है while they are sailing, वो डूबने लगा a storm came और तूफान आया and they were about to die. और वो मरने वाले थे सब। And the captain said, और कैप्टन ने कहा what happened? कि ये क्या हो रहा है? Have we sinned against God? ये हमारा गुनाह, कोई बड़ा गुनाह हमसे हो गया है? And Jonah was sleeping और योना आपको पता है कि सोया हुआ था, like your neighbor. जैसे आपका पड़ोसी सोया हुआ होता है। No. आपको नहीं कहा, But Jonah was इधर sleeping. आपके पड़ोसी होते हैं, उधर कहा। Jonah was sleeping. और खुदावंद का बंदा यूहन्ना सोया हुआ था। And then the captain said, और जब कैप्टन आया उसने बोला, you are the reason why तू ही वजह है जहाज we डूबने are की। suffering. हम ये जो मुश्किल देख रहे हैं तू ही वजह है। And Jonah said, yes, और जोना ने कहा कि हाँ मैं ही हूँ, I am the problem. मैं प्रॉब्लम हूँ इस So जहाज में। throw me into the sea. मुझे इस समुद्र में फेंक दो। And the captain throw Jonah into the sea. और कैप्टन ने क्या किया? यूहन्ना को लिया और उसको धड़ाम So what happened? उसमें डाल दिया। और उसके There बाद is क्या हुआ? a big fish और बड़ी मछली आई and then swallowed Jonah. और यीशु को निकल लिया और उसको जोना को निकल लिया। And he realized और उसके बाद उसने he सोचा disobeyed God. कि ये मैंने खुदावंद का हुक्म And नहीं while माना। in that belly of the big fish, ये जो मछली आई है he इसलिए आई है। remembered God मछली ने याद रखा है and he prayed, और उसने प्रेयर की। God, और योना ने मछली के पेट में I प्रेयर की disobey you. कि ऐ खुदावंद मैंने तेरे हुक्म को तोड़ा है, Please have mercy on me. ऐ जलाली खुदा मुझे बचा ले, Help me मेरी हेल्प कर खुदा to अजीम, get out from this belly of this मैं fish. इस बड़ी मछली के पेट से बाहर निकल जाऊं। And God heard his prayer. और खुदावंद ने See? उसके दुआ को सुना। You remember the prayer? आप सब जानते हैं। It's being heard by God. और वहां से भी खुदावंद ने Even प्रेयर you को are in सुना। the middle, in that belly of the big fish, God can hear that prayer. अगर आप मछली के पेट में भी हैं तो खुदावंद आपकी आवाज सुनने की कुदरत रखता है। हालेलुया। And God saw Jonah और खुदावंद ने देखा कि यूहन्ना को, and जोना that को, big fish कि बड़ी मछली जो है swallowed Jonah. उसने बाहर फेंक दिया नैनवा के बॉर्डर पर। In which place? किस प्लेस पे? ऊंची आवाज कहांगे? Praise the Lord। Is that a miracle? और ये मौजज़ा हुआ। He was going to Tarshish. पहले वो तरसीस को जा रहा था। And God used that big fish खुदावन ने बड़ी मछली को इस्तेमाल to किया reroute him कि उसका रास्ता तब्दील करे going to Nineveh. और नैनवा को भेज दे। Amen. आमीन।
But what's the mission? To be a witness to क्या Nineveh. मकसद ये था कि खुदावंद की गवाही दे योना जो है नैनवा के लोगों को। That's why when we इसीलिए hear the voice of God, जब हम खुदावंद की आवाज को सुनते हैं as he says in here, Acts 24, और जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है अमाल की किताब उसका 24 बाब you will be my witness. कि तुम मेरे गवाह बनोगे दुनिया के कोने In कोने पर। Katif, इन कतीब में गवाह बनोगे and you should obey. और आप खुदावंद के हुक्मों को मानने। Amen. आमीन। Maybe there is no more big fish here, you know. अगर हम खुदावंद के हुक्मों को मानेंगे तो मछली जो है नहीं होगी। There is no big fish in the desert. और इस समुद्र में जो है बड़ी मछली नहीं होगी। Right? राइट। Maybe camel. But that is impossible. लेकिन Amen. होगी उधर, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। So tell to Hallelujah. Jesus, tell to the Lord, raise your hands. आप अपने हाथों को उठाइए। Lord Jesus, लॉर्ड जीसस, I am very willing मैं अपनी मर्जी से कहता to हूँ be your witness. कि तेरा गवाह बनूंगा मैं। Use me मुझे इस्तेमाल कर। with Brother Ashir मुझे ब्रदर आशर के साथ इस्तेमाल here in कर। Jubail. और Here. No, sorry, because I'm from Jubail. Okay. Here in Katip, फिर कतीब में to be your witness. कि हम तेरे गवाह बने। Amen. आमीन। Amen. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। Are you excited? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ Don't be like Jonah कि आप और मैं यूना की तरह ना बने, that doesn't want to do God's will. क्योंकि खुदावंद की मर्जी को हम देखें। He's running away from the Lord. और वो खुदावंद की मर्जी से भागा, But then at the end of the day, when he got in trouble, लेकिन उसने खुदावंद से जब मुंह फेरा तो मुश्किलात देखना शुरू कर that's दी। the time he realized और जब उसने देखा, रियलाइज किया, that he need God, और उसको खुदावंद की जरूरत थी, that he need to follow God. और उसे जरूरत थी कि खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चले। Amen. आमीन। हालेलुया, Praise the Lord. Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Amen. आमीन। Are we learning something? आप सीख रहे हैं कुछ जो मैं बता रहा हूं। Amen. Praise God. प्रेज द लॉर्ड। So that's the important. ये हमारे in लिए बहुत fulfilling the Great इम्पोर्टेंट है। It's not the command ये सिर्फ हुक्म ही नहीं है, of men, ये हुक्म जो है इंसान के नहीं है, but this is coming from our Lord Jesus. ये खुदावंद की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से आए हैं। Amen. हालेलुया। That even the lost people, अगर लोग unbeliever, सॉरी, even the unbeliever people यहाँ तक के ईमानदार लोग जो हैं, will know Jesus हमें जरूरत है यीशु मसीह को जानने because की, of you. क्योंकि आप और मैं One day एक दिन you will be in heaven. कि आप आसमान पर जाएंगे, There is one person, two person, three person उधर एक बंदा होगा, दो बंदे होंगे, तीन बंदे होंगे, will come to you, will meet you there in heaven. और उधर आपके साथ हेवन में आसमान पर जाएंगे, And he will tell you, और वो आपसे कहेंगे, Brother Ashir, ब्रदर देव, I was in Katip. मैं कतीफ में था, You invited me to Jesus' Lord Church. और तुमने मुझे वहां पर जीसस इज लॉर्ड चर्च में बुलाया था, That's why I'm here with you. इसीलिए मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। Amen. आमीन। हालेलुया। Praise God. आपने मतलब समझा, मतलब ये था कि जब आप और मैं आसमान पर जाएंगे तो हम एक दूसरे से कहेंगे कि मैं आसमान पर खुदावंद की बादशाही में इसलिए दाखिल हुआ हूं क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया और मैंने खुदावंद के हुक्मों को देखा और बाद में उस पर अमल किया, और आज मैं खुदावंद की बादशाही में हूं। हालेलुया। ये है मकसद उनके बताने का और मिसाल देने का। So don't be afraid to be a witness. खुदावंद की गवाही देने से पहले तो शर्माए ना और डरे ना। Amen. आमीन। Just invite your friends. आप अपने दोस्तों को बुलाइए। Amen. You don't know the Bible, no problem. अगर आप नहीं भी बाइबल को जानते तो कोई मसला नहीं है, Just tell him, come to me. बस उसको बोलिए कि आप मेरे साथ आइए। I have good friends in JIL. अब मैंने देखा है जीसस इज लॉर्ड चर्च में बहुत ज्यादा खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिया And जाता we are है। speaking about Jesus. और जब हम बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, Come and experience Jesus आइए यीशु मसीह की हजूरी का तजुर्बा कीजिए, like I experienced. जैसे मैंने तजुर्बा किया है। Amen. आमीन।
Amen. And Amen. I need to stop from witnessing. Maybe. Okay. So Yes. let's move on. आइए आगे So- बढ़ते हैं. Okay. Step number 4. So this step number 4. Do you want more? We have 5 only for today. हमारे पास Okay. सिर्फ 5 है और हम 4 तक पहुंच गए हैं और 1 बाकी है. हालेलुया. So remember, और याद रखें, याद brothers रखें, and sisters, भाइयों और बहनों याद रखें, if we want to grow, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, if we want to be strong and healthy spiritually, अगर आप रूहानी तौर पर मजबूत बनना चाहते हैं, we need to pray. हमें दुआ करने की जरूरत है. We need to read our Bible, हमें पाक कलाम को पढ़ने की जरूरत and है we need to be a witness of Jesus. और हमें गवाही देने की जरूरत है. Amen. आमीन. हालेलुया. Hallelujah. Number 4, और नंबर 4 देखेंगे, fellowship. हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए. Who wants to fellowship with other brethren? कौन कौन चाहता है कि हम सब मिलकर रहें? कौन कौन चाहता है? हालेलुया. Brother Asher, I heard you have also prayer meeting, right? Yes, You have also Bible study, yes, and we have this gathering every yes, Friday. yes. Every Friday and every Thursday night. You have also eating fellowship, I heard. Yes, You cook biryani. yes, yes, Yes. yes, So this is fellowshipping. yes. And one of the example of fellowshipping जब is, हम जुमेरात को इकट्ठे होते हैं, जब हम खाते पीते हैं, जब हम मिलकर बैठते हैं, इसको कहते हैं फेलोशिप. जब हम इबादत करते हैं. हालेलुया. so what we are doing now हम अभी क्या करेंगे? is a fellowship. ये फेलोशिप है. Jesus is Lord Church fellowship. जीसस इज लॉर्ड चर्च की फेलोशिप में हम बैठे हुए हैं. And the Lord said, खुदा ने कहा, let us not consider how we may spur one another आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की on किताब. toward love and good deeds, Yes. but not giving इब्रानियों 10 up बाब उसकी 24 और 25 आयत. meeting together. Yes. In other words, this kind of fellowship, we should not miss them. खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो. हालेलुया. Pakibalik mo. Fellowshipping. ये है फेलोशिप. What have you experienced here in JI? इस जगह पर आपने और मैंने क्या तजुर्बा किया है? कोई बता सकता है? Are you feeling sad, or are you feeling excited? आप फीलिंग सैड फील कर रहे हैं या एक्साइटेड फील कर रहे हैं? After the fellowship is finished or done, then we will go home, right? इस प्रेयर के बाद हम अपने घरों को जाएंगे. Do you go home sad? जब आप घरों को जाएंगे तो सैड जाएंगे. You go home full of joy, right? जब आप अपने घर जाएंगे तो जॉय के साथ, खुशी के साथ जाएंगे. हालेलुया. That's the fellowship. ये है फेलोशिप. Amen. जब आप Because Jesus said, where or two or three gathered in my name. क्योंकि I जब am तुम मेरे नाम the से midst of इकट्ठे them. हो गए, That's why we are excited. इसीलिए हम एक्साइटेड हैं. Amen. आमीन. We want to fellowship to each other हम because एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए. Jesus यीशु is there. इस जगह पर मौजूद है. The presence of God is there. खुदावंद की हजूरी इस जगह पर मौजूद That's है. why we grow. इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं. Amen. Amen. We are talking about Jesus. हम यीशु और मसीह के बारे में बताना चाहते The हैं, goodness of Jesus. उसके अच्छे कामों को बताना चाहते हैं. Amen. आमीन. And you will go home. You are still, thinking about what you have learned. जब आप अपने घरों में जाएंगे तो आप सोचेंगे कि आज हमने क्या सीखा था. And when you're lying down to your bed, I remember that word. और जब आप अपने बेड पर लेटे होंगे तो आप सोचेंगे कि आज मैंने क्या सुना था. The steps to Christian growth. और कि कैसे 5 स्टेप जो हैं सीख कर I मैं need- आगे बढ़ सकता हूँ. I need to pray.
हमें दुआ करने I की need to जरूरत read है, my Bible. हमें पाकलाम पढ़ने की I जरूरत है, need to be a witness of Jesus. हमें क्या करने की जरूरत है, गवाह बनने की I जरूरत है, need to fellowship. I need to be I need to have a fellowship with और my हमें brothers, इकट्ठे मिलकर रहने की जरूरत है, with my sisters. और हमारी बहनों के साथ। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Amen. Hallelujah. हालेलुया। अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। So every given Friday, हर जुमा को we should be excited. हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। Amen. आमीन। During our prayer meeting, हमारी प्रेयर मीटिंग में you should be excited. कि आप भी एक्साइटेड हो, And tomorrow, और सुबह we will be having a Don't Watch Prayer, brother. और सुबह को 4:30 बजे डॉन वॉच प्रेयर मीटिंग है सुबह को। कल You सुबह can को। join by a Zoom अगर आप चाहते हैं तो जूम के जरिए से जुड़ सकते हैं। 4:45 a.m. वही देखा 4:45 This is 21 days. ये जो है 21 दिनों के लिए We है। will share the word of God. हम खुदाउन के पाक कलाम को We will बताएंगे, pray. हम दुआ करेंगे, We will worship the Lord. हम प्रशिश करेंगे, And that's also a fellowship. और उसके साथ हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहेंगे, Even we are only in Zoom. अगर चाहे हम जूम पर ही क्यों ना हो। So all of you हम सब are encouraged एक दूसरे को बताएं to attend. कि अटेंड करें। Amen. That is Amen. tomorrow. हालेलुया, Amen. हालेलुया। So let us not miss in fellowship together. एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर दीजिए, Amen. इकट्ठे रहना शुरू कर दीजिए, फेलोशिप करना शुरू कर दीजिए। Amen. आमीन। Amen. Click po. Fellowshipping means connecting with other Christians so they may grow together in faith. एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का मतलब ये है कि हम अपने क्रिश्चियन भाइयों बहनों बुजुर्गों माओ बेटों बेटियों के साथ मिलकर रहें और अपने ईमान को दूसरों के साथ शेयर करें। हालेलुया। So to grow in faith, और जब हम ईमान में बढ़ते हैं, you need your brother. आप जरूरत है आपके भाई की, आपको You need जरूरत your है, sister. आपको अपनी बहन की जरूरत है। Why? और क्यों? Because when you have problem, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होती है, where you will go? कहाँ जाएंगे आप? You will go to brother Ashir. क्या आप मेरे पास आएंगे? Brother Ashir, I have problem. I need brother- prayer. कि आशिर भाई मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं प्रेयर कर रहा हूँ, And brother Ashir will pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करूंगा, And you will feel energized. और उसके बाद आप अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे। Amen. आमीन। So that's the fellowship. ये है फेलोशिप। Amen po. जब हम इकट्ठे रहते हैं तो ये फेलोशिप है, एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। And that's the church of Acts during that time. ये है अमल करने वाला चर्च। हालेलुया। They were praying together. वो क्या करते हैं, पहले चर्च शुरू हुआ था, They वो are दुआ करते थे इकट्ठे मिलकर, they are united और वो इकट्ठे रहते थे in helping each other. और एक दूसरे की हेल्प करते थे। That's why the church grows. इसीलिए चर्च जो है बढ़ता है आगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Amen. Praise God. Thank you, brother Ashir. वेलकम। Next. नंबर 5। So now this is the challenge. ये स्टेप जो है लास्ट स्टेप है और ये चैलेंज वाला स्टेप है। See, like what I've shared earlier about Jonah. यस, जैसे हमने पहले जोना के बारे में पढ़ा। In order for us to grow, भाई इधर देखो भाई, we need to obey. हमें जरूरत है खुदावंद के हुक्मों को मानने की। हालेलुया। The Bible says, खुदावंद का Do. पाक कलाम कहता है, what it says. खुदावंद का पाक कलाम ये कहता है कि जो खुदावंद ने कहा है वो ही करो, जो तुम कहते हो वो करो। Whatever we heard, जो भी हमने खुदावंद के पाक कलाम से सुना है, whatever we learn, जो भी हमने सीखा है, whatever we read, जो From भी the हमने word of पढ़ा God. है खुदावंद के पाक कलाम से, we should obey. हमें खुदावंद के हुक्मों को मानने की जरूरत है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Go back to Jonah. फिर जाइए जोना की तरफ Amen. Obedience. और If we उसे want देखिए to कि grow, उसने कैसे हुक्मों को माना। if we want to grow spiritually, अगर आप रूहानी तौर पर बढ़ना if चाहते we हैं, want to be healthy, अगर आप ताकतवर strong होना चाहते हैं spiritually, और पावरफुल होना चाहते हैं स्पिरिचुअली, do करें what God says.
जो भी खुदावंद कहता है वो करें। हालेलुया। Amen. Next po. Obedience to God means living according to the decrees, laws, and the commands written in His Word. खुदावंद के हुक्मों को मानने का मतलब ये है कि हम खुदावंद के पाकलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें और जो उसकी शरीयत है उस पर अमल करें, और जो भी उसने हमारे साथ बातें की हैं उसके मुताबिक एक दूसरे के लिए प्रेयर करें, एक दूसरे के साथ मिले रहें, एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहें और खून और गोश्त में शरीक होते रहें। हालेलुया, प्रेज द Amen. लॉर्ड। So that's the challenge. ये है चैलेंज हमारे लिए। Amen. आमीन। If we want that our life अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी will experience तजुर्बा करे the favor, और खुदावंद की फेवर का blessing और बरकत का that comes from the Lord, जो खुदावंद की तरफ से आती है, even the protection, और जो भी उसकी प्रोटेक्शन हमारे ऊपर आती है, even provision और उसकी प्रोविजन जो हमारे to ऊपर all आती of our है needs, हम सब के लिए और हमारी हर जरूरत के लिए, the key वो चाबी जो है is to obey. हुक्मों को मानना है। हालेलुया। Amen. And if you want to अगर be आप चाहते strong हैं स्ट्रांग बनना and healthy spiritually, और पावरफुल बनना चाहते हैं रूहानी तौर पर, we need to obey. हमें हुक्मों को मानने की जरूरत Obey है the Lord. और खुदावंद के हुक्मों को मानने की जरूरत है, As the Lord says in His Word, क्योंकि खुदावंद के पाकलाम में लिखा हुआ है obedience कि मेरे हुक्मों को मानो, is better than sacrifice. और हुक्म मानना कुर्बानी देने से बेहतर है। हालेलुया, Amen. आमीन। You know David, King David, आप सब जानते हैं खुदावंद के बंदा दाऊद को, you know him, आप सब जानते हैं, you heard about him, और उसके बारे में आपने सुना है। that the Lord was very happy to this king. खुदावंद अपने बंदा से बड़ा खुश था, उस बच्चा से बड़ा खुश था। Why? क्यों? Why? क्यों? Because he is very obedient to the Lord. क्योंकि उसने खुदावंद के हुक्मों को माना था। हालेलुया, Amen. आमीन। So let us be all King David. आइए हम सब खुदावंद के बंदा दाऊद की तरह बने। हालेलुया, That he will do. क्योंकि जो उसने किया था, God said, खुदावंद ने कहा I have found मैंने अपने दिल के मुताबिक ये बंदा ढूंढ लिया है, the son of Jesse, और यसी की नस्ल से a man एक बंदा after my own heart, मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है, because he will do क्योंकि उसने मेरे हुक्मों पर अमल किया है, everything हर हुक्म पर अमल किया I है, want him जो भी मुझे उससे चाहिए to था, do. यानी वो करे। Brother Asher, what's the name of your father? अलियास, Elias. yes, it's mean in Urdu Alias, in English Elijah. And the Lord will tell you, brother, you know, Yes, I have found Asher, yes. son of Elias. मैंने आशिर को देखा है जो अलियास का बेटा है, After my own heart, कि मेरे दिल के मुताबिक, because he will do क्योंकि उसने चर्च में लोगों को लेके आना शुरू कर दिया है, everything और जो भी मैं कहता हूँ वो मानता I है, want him to do. और जो भी मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए करे वो कर रहा है। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Amen. आमीन। So we need to obey. खुदावंद आपको भी ऐसे ही बनाना Amen. चाहता है, बस हमें जरूरत है कि उसको हुक्मों को माने। हालेलुया, Even it doesn't make any sense. जो भी आपकी मर्जी है खुदावंद की तरफ लेके Like आए। Abraham, इब्राहिम की तरह, he don't know where he was going. वो नहीं जानता था कि वो किधर जा रहा है। When God told him to go, he did not told Abraham जब खुदावंद के बंदा इब्राहिम को खुदावंद ने कहा कि जा to go to Mount Moriah. के उधर Moriah. मुराया को जा, But God told Abraham खुदावंद ने अब्राहम से कहा to go कि जा and offer और कुर्बानी कर, your son Isaac. अपने बेटे की कुर्बानी कर। For him, it doesn't make any sense. और उसने कोई बात नहीं कही, Because he waited for 100 years. क्योंकि उसने क्या किया, 100 साल इंतजार किया था। And then the Lord asked him और जब फिर खुदावंद ने उससे कहा to offer Isaac कि आप अपने बेटे की कुर्बानी करो to the Lord. खुदावंद के लिए। But what happened? क्या हुआ उस वक्त? He obeyed the Lord. उसने खुदावंद के हुक्म को माना। हालेलुया,
Amen. आमीन। That is obedience. ये है हुक्मों को मानना। There is no question. उधर कोई क्वेश्चन नहीं किया था उन्होंने। Like a soldier, I don't know in Pakistan and India, जब but in the हम- Philippines, मैंने पाकिस्तान इंडिया में नहीं देखा, लेकिन फिलीपीन में देखा है the soldier, कि जो फौजी हैं they are always telling this: कि हर वक्त वो ये कहते हैं obey first हुक्मों को मानना पहले रखिए, before you complain. कंप्लेन से पहले हुक्मों को माने। Amen. आमीन। And we are the soldiers of Jesus Christ. हालेलुया। और हम खुदावंद यीशु मसीह की फौज हैं। हालेलुया। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Next part. See, Deuteronomy 11 verse 1. जब हम इस्तिशना की किताब उसका 11 बाब देखते हैं, Love the Lord your God and keep his requirements, his decrees, his laws, and his commands always. सो तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना और उसकी शरह और आइन और अहकाम और फरमानों पर सदा अमल करना। हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Okay, let's click pop. Obedience to God means listening and heeding his voice. खुदावंद के पाकलाम को मानना और उसके हुक्मों पर चलना, ये मतलब है कि हम खुदावंद के पाकलाम को सुन रहे हैं और जो भी वो बोल रहा है हम तक पहुंच रहा है। हालेलुया। Amen. Obedience is a proof that we love the Lord. हुक्मों को मानना हमें ये बताता है कि हम खुदावंद से प्यार करते हैं। Who loves the Lord? कौन खुदावंद से प्यार करता है? हालेलुया। Are you sure you love the Lord? आप पक्का है कि आप खुदा से प्यार करते हैं? यस। So you should obey. आपको और मुझे फिर हुक्मों को Because मानने की that's जरूरत the है, proof. क्योंकि ये प्रूफ है हमारी That's जिंदगी में। the only proof ये सिर्फ एक प्रूफ है that we can show to the Lord कि हम खुदा को दिखा सकते हैं that we love him. कि हम उसको प्यार करते हैं। Because we cannot tell him, Lord, I love you, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि but I don't obey you. कि हम ये नहीं कह सकते हम तुझसे प्यार करते हैं लेकिन हम तेरे हुक्मों को नहीं मानेंगे। Does not make any sense. ये कोई सेंस नहीं बनती है इसकी। Amen. आमीन। Praise God. Praise So Lord. if we love the Lord, अगर हम खुदा से प्यार करते then हैं we should obey the तो Lord. हमें हुक्मों को मानने की जरूरत है। हालेलुया। Because Praise Lord. Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा anyone who loves me जो भी कोई मुझसे प्यार will करता obey है me. मेरे हुक्मों को माने। Amen. आमीन। Amen. Amen. Praise God. Praise हालेलुया। God. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. We are almost done. और हम ये सब Amen. ये कंप्लीट कर दिया है अभी। So to my conclusion, मेरा ये कहने का मतलब है, but before to my conclusion, कंक्लूजन से पहले मेरी ये आपसे बात है। I know मैं जानता हूं that God कि खुदावंद also हमारे लिए spoke to each and every one of you today. हमारे लिए सबसे बात करता है, सबसे जो जहां पर मौजूद है, Something deeper. और वो हमारे लिए कुछ नया करना चाहता है। That when you go home, जब हम अपने घरों में जाएंगे you will think, आप सोचेंगे you will reflect, और आप देखेंगे and you will begin to ask the Lord, और फिर आप खुदावंद से कहेंगे and you will obey the Lord. और फिर हम क्या करेंगे? खुदावंद के हुक्मों को मानेंगे। Amen. हालेलुया। आज के जो टॉपिक है आपके सामने, आप मोबाइल से पिक्चर ले सकते हैं ताकि आपको पूरा हफ्ता पता रहे। अगर नेक्स्ट फ्राइडे आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। Amen. आप पिक्चर लें इसकी, जिनके पास मोबाइल है इनकी पिक्चर लीजिए। हालेलुया। Praise God. Praise God. हालेलुया। अपने हाथों का So- इस्तेमाल कीजिए खुदावंद के जलाल के लिए। So we will going to read this one और by one, Brother Ajir. हम I अपनी want them to understand this very well. Okay? अभी हम देखेंगे Okay. जैसे हमने आपको बोला 5 स्टेप कौन से थे, वो एक एक करके फिर मैं आपको बताता हूं। Just as a plant grows जैसे बीज को लगाते हैं और बाद में वो बढ़ता है and bears fruit और फिर बाद में फ्रूट फल लेके आता है, after receiving ample amount of air और वो क्या करता है? हवा को लेता है, सनलाइट को लेता है, water पानी को लेता है and sunlight, और सनलाइट को लेता है। a Christian also grows क्रिश्चियन इसी तरह मसीही लोग बढ़ सकते हैं and matures और मैच्योर हो सकते हैं after committing और अपने आप से ये कमिट करके कर सकते हैं himself
to अपने आप से कमिट करके prayer. प्रेयर नंबर 1 प्रेयर Tell to your neighbor, prayer. प्रेयर एक दूसरे को Yeah, बोलिए come on, प्रेयर tell. Prayer. प्रेयर जहांगीर Okay. को ब्रदर जहांगीर को बोलिए Bible प्रेयर reading. बाइबल रीडिंग Witnessing to others. गवाही दें दूसरों को बोलिए एक दूसरे को गवाही दें दूसरों को Fellowshipping with other और believers. इकट्ठे मिलकर रहे एक दूसरे को बोलिए And obedience to God. और खुदावन के हुक्मों को माने एक दूसरे को बोलिए Amen. आमीन आमीन Amen. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Okay. And to my last verse, Brother Rozier, ये मेरी आपके साथ I will read this very आखिरी आयत slowly. है आपके साथ मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरा पत्रस उसका 3:17-18 निकाल लीजिए Therefore, यस beloved, since you already know these things, be on your guard so that you will not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure standing. खुदावंद के But पाक grow में लिखा हुआ है in बस the, ए भाइयों बस ए अजीजों चूंकि तुम पहले से आगाह हो इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को ना छोड़ दो बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे आमीन Amen. हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus. थैंक यू Let जीसस us all stand. आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे प्रेज लॉर्ड Are you feeling excited? आप एक्साइटेड फील करते हैं Amen. आमीन And I sense in my spirit और मैं अपनी रूह से कहना चाहता हूं that God, कि खुदावंद Jesus, यीशु wants to know your desire. खुदावंद यीशु आपकी सोचों को और आपकी जो भी जरूरियात हैं उनको देख रहा है हालेलुया And this should be our desire, बस यही हमारी सोच और डिजायर होनी चाहिए to grow कि हम बढ़े आगे हालेलुया for Jesus. यीशु मसीह के लिए बढ़े हालेलुया To grow for Jesus. यीशु मसीह के लिए बढ़े To be used for Jesus. इस्तेमाल हो यीशु के लिए Amen. आमीन हालेलुया